Students, again welcome in my channel. This is Mr. Arya sir, HOD Chemistry. Students, this is the class 12th. Students, in previous lecture we were discussing the topic that is chemical properties of alcohols. We are discussing that there are the three type of chemical properties shown by the alcohol. That is the reaction by the phenolic group, second reaction of benzene ring, and third is the some special reaction. So today we are discussing the topic that is the some special reaction, that is the Kolbe reaction, Reimer-Tiemann reaction, and coupling reaction. So dear students, we discuss the next type of reaction which shown by the alcohols. This is the reaction of phenolic group. You know that in the phenol, this is the phenol, this is the phenolic group. So the reaction which is shown by the phenolic group, that is the reaction of phenolic group. The first reaction of the phenolic group, that is acidic character or acidic nature. Dear students, phenol is weakly acidic in nature. Phenols are acidic, weakly acidic in nature. यानी एसिडिक फिनॉल्स जो होते हैं वीकली एसिडिक नेचर के होते हैं. अब इस एसिडिक नेचर को शो करने वाले, जैसे आपने अल्कोहल का किया था वैसे इसमें भी करेंगे. सपोज दैट दिस इज द phenol, you know that this is phenol. If this phenol reacts with the sodium, then what happened? This hydrogen liberated and this reacts to this form. It means here the product obtained, that is ONA. This is the sodium phenoxide. This is sodium phenoxide, this one. And you know that here we write the 2 and also here we write 2. So we write here the 2 and here also 2. So here the 2 phenoxide is formed. At the place of sodium, we also take the sodium hydroxide. You know that this is phenol. If this phenol reacts with the sodium hydroxide, then what happened? Same process. This hydrogen reacts with OH, then produce the water molecule, and this sodium add to this position. You know that this is the phenol. Here we add ONA. This is also sodium phenoxide. So these two reactions represents the acidic nature of phenol. And this is the reaction of phenolic group. This is the first reaction. Maybe all of you understand. Now we discuss the acidic nature, but this is an important topic. Dear students, in your examination generally one question is given related to the arrange the increasing or decreasing order of acidic nature. But this topic we explain at the last of this chapter, because this is the important chapter and we discuss its detail, how you arrange increasing or decreasing order of acidic character of phenol and other compounds. So this topic we explain at the last of this chapter. So at first we discuss the reaction of phenolic group. The first property, that the acidic nature. We know that phenols are weakly acidic in nature. So if phenol react with sodium or the sodium hydroxide, then it form the sodium phenoxide in both conditions. So all these reactions show the acidic character of phenol. Understand? Now we discuss the second property that show the reaction of phenolic group. All of you look here and try to understand. The second reaction that shows the phenolic group. Look here. The second property, dear students, that is action with zinc dust. Look here and try to understand. Action with zinc dust. Action with zinc dust. Students, you know that this is the phenol. Here
This is phenol. If phenol is heated with zinc dust, you know that zinc dust means if we take the Zn, if we heat with zinc dust, then what happen? This, listen carefully, this zinc yani Zn, if reacts with oxygen, then form the zinc oxide, and also this hydrogen add to this position, so the compound obtained, that is benzene. Maybe all of you understand. जब यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके ZNO बनाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, एंड यू नो दैट ऑल कार्बन कंटेन हाइड्रोजन, सो वी राइट लाइक दिस. तो दिस इज द बेंजीन. इफ इन योर एग्जाम आस्क दैट हाउ यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन, यानी फिनॉल से आप बेंजीन कैसे बनाओगे, तो देन यू राइट दिस रिएक्शन, एंड दिस इज द सेकंड रिएक्शन विच इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉलिक ग्रुप. क्योंकि आप देख रहे होंगे इस रिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, केवल इस ग्रुप में चेंजिंग हो रही है. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉलिक ग्रुप. ओके, दिस नाउ वी डिस्कस द थर्ड, दैट इज द रिएक्शन विद अमोनिया और एक्शन विद अमोनिया. तो ऑल ऑफ यू listen the third point for the phenolic group, that is reaction with ammonia. Reaction with ammonia. Dear students, you know that if the phenol reacts with ammonia, means suppose that this is the phenol, you know that this is the structure of phenol OH. If this reacts with ammonia in the presence of anhydrous zinc chloride, this reaction goes in the presence of anhydrous zinc chloride in the presence of near about 675 or more than 675 Kelvin temperature, 675 Kelvin. Then what happened? Dear students, this OH reacts with one hydrogen, then produce the water molecule. And what is the left? यहाँ NH2 बचा और NH2 इस प्लेस पे ऐड हो गया. So the product, that is NH2 here and plus water. यहाँ से OH वन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ पर NH2 इसके प्लेस पे आ जाएगा, that is aniline. That is aniline. So this reaction is also used if we want to convert the phenol into aniline. अगर आपको फिनॉल से एनिलीन बनाना हो, तो then you write the reaction between the phenol and ammonia in the presence of anhydrous ZnCl2 at the temperature 675. So this is the third reaction which is the phenolic group. क्यों phenolic का है? क्योंकि इसमें भी चेंजिंग किसमें हो रही है? OH ग्रुप में. रिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है. Now we discuss the fourth reaction which is related to the phenolic group. The fourth reaction which is related to the phenolic, that is the action of acid chloride. Action of acid chloride and acid anhydride. अभी आपको अल्कोहल पढ़ाया गया था, and acid anhydride. Anhydride. You know that this reaction is known as the acylation reaction. अगर हम फिनॉल का एसिड क्लोराइड से या एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द acylation reaction. Dear students, look here. Suppose that this is the phenol. You know that here the OH, this is the phenol. If this phenol reacts with the acid chloride, एसिड होने होता है जिसमें COCl ग्रुप आता है, वो आपका एसिड क्लोराइड होता है. तो COCl में आप यहाँ कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया CH3COCl. अब कितने कार्बन यहाँ पे? 2. तो फॉर 2 कार्बन वी राइट एथेन, ई को हटा के क्या लगा देंगे? ऑयल क्लोराइड. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज एथेनॉइल क्लोराइड. मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. इफ एथेनॉइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल, you know that this is the phenol, in the presence of pyridine, then what happened? Same process going on, students. क्योंकि ये रिएक्शन आपका किसका? फिनॉलिक ग्रुप का. मींस चेंजिंग कहां से होगी? इसमें होगी. जब स्टूडेंट्स होगा क्या, देखिए ये H जो है Cl से रिएक्ट करके फॉर्मेशन क्या कर देगा? HCl. अब बचा स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर?
यहाँ पर आपका O बचा और यहाँ पर आपका बच गया COCH3। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मेशन क्या होगा, जो कंपाउंड आपका बनेगा दिस इज द बेंजीन रिंग, इसके ऊपर आपका यहाँ O बचा क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन निकल चुका, बचा क्या COCH3, सो वी राइट द COCH3। सो द प्रोडक्ट दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 और प्लस क्या लिबरेट हो गया HCl। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज फेनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट, एथेनोएट। ओके, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज फेनाइल इथेनोएट। सेम रिएक्शन अगर हम एसिटिक आयन हाइड्राइड से कराएं स्टूडेंट्स, हमने कहा था आप दोनों में से किसी से करा सकते हो। सपोज दैट वी टेक हियर द OH एंड इफ दिस रिएक्ट द एथेनोइक आयन हाइड्राइड, हमने बताया इसको आप कैसे लिखोगे, CH3CO CH3COO। अब स्टूडेंट्स इसमें एथेनोइक आयन हाइड्राइड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज इथेनोइक आयन हाइड्राइड, एथेनोइक आयन हाइड्राइड। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड। हमेशा याद रखिएगा, अगर अल्कोहल का आपने कराया था दोनों पायरिडीन के प्रेजेंस में कराते हैं, बट फिनॉल में अगर एथेनोइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा पैरिडीन के प्रेजेंस में करता है, बट अगर एथेनोइक आयन हाइड्राइड करता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड के प्रेजेंस में करता है। तो सेम रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन यहां से इसके साथ रिएक्ट करके आपका एसिटिक एसिड फॉर्म कर दिया, क्या बना CH3COOH। डियर स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म दैट इज CH3COOH प्लस, अब बचा यहाँ पे क्या भाई CH3O बना, यहाँ COCH3 बचा, तो मीन्स द प्रोडक्ट इज द सेम, दैट इज दिस इज द बेंजीन रिंग एंड हियर वी राइट द OCOCH3। देखिए ये O है और ये COCH3, द नेम सेम दैट इज फिनाइल इथेनोएट, so this is the product. तो this reaction is the action of acid chloride or acid anhydride। इसमें भी आप देख रहे हैं कि रिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, केवल इस फिनोलिक ग्रुप में चेंजिंग हो रही है। so this reaction is also represents the reaction of the phenolic group। तो all these reactions are example of phenolic group, maybe all of you understand that। the next reaction, fifth, that is a reaction to the phenolic group। all of you look here and try to write the fifth example, that is the reaction of phenolic group। the next fifth reaction of phenolic group, that is action with benzoyl chloride, action with benzoyl chloride, action with benzoyl chloride। this reaction is known as the this is, you know that benzene, if the benzene reacts with the if the phenol reacts with the benzoyl chloride, then this reaction is known as the benzoylation reaction, benzoylation reaction। what is this? same process, you know that this is the phenol, suppose that this is the phenol, if this phenol reacts with the benzoyl chloride, you know that benzoyl chloride means C6H5, ऑयल आ गया, इसका मतलब COCl यहाँ लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर इसका रिएक्शन आप कराओगे तो ये रिएक्शन हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होगा स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। क्या होगा, सेम प्रोसेस, ये H इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा HCl, और ये जो C6H5CO है इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन क्या होगा भाई, यहाँ पे ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपका O ऑलरेडी था, COC6H5 ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आपका बेंजीन रिंग है, तो इसका नेम आपका क्या आ जाएगा, फेनाइल बेंजोएट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज फेनाइल बेंजोएट। तो ऑल दीज रिएक्शंस are the example of reaction of phenolic group, maybe all of you understand all these। so we have completed the two type of reaction, that is the special reaction of phenol and the second
reaction of phenolic group. All these are the example of reaction of phenolic group. Now we discuss the second and last reactions of phenol, that is reaction of benzene ring. Look here and try to understand. Now we discuss the third reaction, that is reaction of benzene ring. The third type, that is reaction of benzene ring. This is known as the electrophilic substitution reaction. सब्स्टिट्यूट मीन्स होता आप जानते होंगे हटाना, रिप्लेस करना। बेंजीन रिंग, अब तक आप जो भी चेंजिंग कर रहे थे फिनोलिक ग्रुप में करते थे, लेकिन अब जो चेंजिंग होगी वो किसमें होगी? बेंजीन रिंग में। तो पहला इसका एग्जांपल है फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज ब्रोमिनेशन। I'll have to look here and try to understand. The first reaction for that is bromination. I'll have to look here. The first reaction for this, that is bromination. Dear students, there are two conditions of bromination. That one is if phenol reacts with bromine, there are two conditions of bromine. That is the aqueous bromine, मतलब वाटर के साथ ब्रोमीन का सॉल्यूशन बना हो। एंड सेकेंड कार्बन डाइसल्फाइड या जनरली सेकेंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बना हो। तो देयर आर टू कंडीशन विच रिएक्ट्स विद द फिनॉल। दैट फर्स्ट इज द एक्वस सॉल्यूशन। अगर ले ध्यान दीजिएगा, देयर आर टू कंडीशन। इन फर्स्ट कंडीशन यू नो दैट दिस इज द फिनॉल। If we write here, this is the OH, this is phenol. If phenol reacts with bromine, but what type of bromine? Aqueous. अगर aqueous bromine से रिएक्ट करेगा तो rod प्रोड्यूस। देखिए अगर aqueous से करता है तो ये आपका दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, तीनों पोजीशन पे आपका ब्रोमीन ऐड होगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यू नो दैट दिस इज द फिनॉल। Here we write the OH phenol। इस कंडीशन पे ब्रोमीन, इस कंडीशन पे ब्रोमीन और इस कंडीशन पे ब्रोमीन। अब आप जानते हैं जहां जहां पर ब्रोमीन आप ऐड कर रहे हो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। तो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन से रिएक्ट करके 3 HBr प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? 3Br। अब ब्रोमीन कितना हो गया? 3 यहाँ और 3 यहाँ 6, इसलिए यहाँ पर कितना राइट कर दोगे? 3। अब देखिए ये 1 नंबर कार्बन 2 3 4 5 6, तो एक ब्रोमीन 2 नंबर पे है, सेकेंड ब्रोमीन किस नंबर पे है? 4 नंबर पे है, एंड थर्ड ब्रोमीन किस नंबर पे? 6। देखिए 2 3 4 नंबर हो गया, 5 6 2 4 6। ब्रोमीन कितने बार आया भाई? 3 बार। 3 के लिए हम क्या लगाते हैं? ट्राई। और ब्रोमीन के लिए क्या लगाते हैं? ब्रोमो। और इसको क्या कहते हैं? फिनॉल। तो नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अगर सेम रिएक्शन यही आप कराते हैं, सपोज दैट, I'll have to look here and try to understand. अगर हम सेम रिएक्शन यही कराते हैं, there is some problem of marker, so I'll have to pay attention. This is the OH phenol. If this reacts with bromine, but the condition is changed. Here the aqueous solution मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन है, लेकिन अगर सेम कंडीशन अगर हो, यहाँ पर हम क्या लें? कार्बन डाइसल्फाइड ले लें और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में कराएं। सेम कंडीशन अगर इसके प्रेजेंस में करा ले रहे हैं और द टेम्परेचर दैट इज द 293 केल्विन, देन व्हाट हैपेन? ये ब्रोमीन, अब आप जानते होंगे जो ये फिनोलिक ग्रुप होता है इसमें OH ग्रुप जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये वाली कंडीशन कौन सी होती है? आर्थो। ये कौन सी होती है? मेटा। और ये कौन सी होती है? पैरा। तो जो फिनोलिक ग्रुप होता है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा आर्थो और पैरा ऑब्टेन्ड होगा। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स? देयर आर टू पॉसिबिलिटी। दैट फर्स्ट, ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH है। पहली पॉसिबिलिटी होगी ब्रोमीन किस पर लग जाएगा? ऑर्थो कंडीशन पर। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये पैरा कंडीशन पे आ जाएगा। पैरा कंडीशन मीन्स यहाँ पर OH ऑलरेडी है, पैरा कंडीशन ये होती है, यहाँ पर आ गया। तो इसमें क्या बन गया? ये 1 2 2 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो
टू ब्रोमोफिनॉल, या इसको हम कह सकते हैं पैराब्रोमोफिनॉल, सॉरी आर्थोब्रोमोफिनॉल। इसको अगर कहेंगे तो क्या हो गया, 4 ब्रोमोफिनॉल। अब अगर इसका नेम लिखना हो तो पैरा पे है तो पैराब्रोमोफिनॉल। तो दिस ऑल ऑफ यू लुक हियर, देयर हियर इज नो चेंजिंग, यहाँ OH सेम OH आ, बट इसमें चेंजिंग का है बेंजीन रिंग में, यानी ब्रोमीन आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो। सो दिस रिएक्शन इज रिलेटेड टू द बेंजीन रिंग रिएक्शन। Maybe all of you understand. These two reactions are very important. Generally, these reactions asked in your exams. Okay. Dear students, now we discuss the third reaction that is related to your benzene ring reaction. Dear students, this reaction that is the known as the nitration reaction. So all of you look here and try to understand. Dear students, nitration, just like in benzene, there are the same two possibilities of nitration. Dear students, nitration actually, what the nitration means, reaction with nitric acid. Means if the phenol reacts with nitric acid, but students, there are two conditions by which the reaction of nitric acid. What are the two conditions? That first condition, if nitric acid is in dilute form. All of you look here and try to understand. The first condition, that is, the first is bronation completed. Now we discuss the second reaction of example, that is benzene ring. बेंजीन रिंग का जो दूसरा रिएक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब सेकंड रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? हमने कहा कि सेकंड रिएक्शन ये है कि आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन। क्या कहेंगे बच्चे? नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन में होता है कि नाइट्रिक एसिड की टू कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? इफ द फिनॉल, यू नो दैट दिस इज द फिनॉल OH, if phenol reacts with nitric acid HNO3, but what is the condition? That is dilute. This is dilute nitric acid. What happens? If nitric is dilute, then it produce the ortho and para conditions. देखिए HNO3 डियर स्टूडेंट्स अगर डिसोसिएट्स होता है तो ये डिसोसिएट होकर के बनाता है OH और NO2। OH और क्या बनाएंगे? NO2। अब NO2 एक बार ऑर्थो कंडीशन पे लग जाएगा और एक बार किस पर लग जाएगा? पैरा कंडीशन पे। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन, दैट इज, यू नो दैट इज द फिनॉल। एक कंडीशन में ये आपका NO2 इस पोजीशन पे लग गया। अब बताइए बच्चा क्या होगा? NO2 जब यहाँ लगेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यही हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करके क्या बना देगा? वाटर। चलिए, सेकेंडली क्या होगा? यही NO2 किस कंडीशन पे आ जाएगा? पैरा कंडीशन पे। तो सपोज दैट, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका है, ये OH ऑलरेडी है, अब ये पैरा कंडीशन पे NO2 आ गया। तो अब इसका नेम अगर लिखना हो तो टू कंडीशन पे है तो हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल। NO2 के लिए हम क्या लगाते हैं? नाइट्रो 2 नंबर पे है और ये आपका हो गया फिनॉल। इसका नेम क्या होगा? 4 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल। अब आप जानते होंगे ये आपका क्या है? ऑर्थो, सॉरी ये आर्थो है और क्या? पैरा है। तो पैरा हमेशा ज्यादा पॉसिबिलिटी की होती है, इसलिए ये आपकी मेजोरिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये मेजर होगा और इसकी परसेंटेज कम होगी, इसका मतलब ये कैसा होगा? माइनर होगा। तो ये डाइल्यूट नाइट्रस। अगर सेम रिएक्शन आप फिनॉल का, ऑल ऑफ यू लुक हियर, इफ द सेम रिएक्शन, दिस इज द फिनॉल, if the same reaction going on with nitric acid, but which type nitric acid? Concentrate, and in the presence of sulfuric acid। देखिए कॉन्सेंट्रेट तब होता है जब सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, और अगर वाटर में कॉन्सेंट्रेट कम, मतलब वाटर ज्यादा हो, नाइट्रिक एसिड कम हो, तो उसको कहेंगे डाइल्यूट। तो सेम कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, क्या होगा? ये फिर यही डिसोसिएट होगा, किसमें किसमें? OH और NO2 में। अब क्या होगा? ये तीनों कंडीशन पे लग जाएगा। तो व्हाट इज द थ्री कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर फिनॉल। फर्स्ट कंडीशन में कहा? NO2 इस कंडीशन पे, सेकंड इस कंडीशन पे, एंड थर्ड किस पर लगेगा? इस पर। और आपका तीन जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, 1 2 एंड 3।
3 हाइड्रोजन निकलेगा तो इसमें से 3 OH बचेगा। ये 3 OH और 3 हाइड्रोजन जो है निकल रहे हैं, इससे रिएक्ट करके 3 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो चाहे तो आप आगे लिख लो +3 वाटर मॉलिक्यूल 3H2O। अब देखिए इसमें आपका किस किस कंडीशन लगा है, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, 2,4,6 कितनी बार हो गया, ट्राई। और NO2 के लिए हम क्या लगाते हैं, नाइट्रो। और स्ट्रक्चर किसका, फिनॉल। इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, picric acid. The IUPAC name for this is 2,4,6-trinitrophenol and the common name that is picric acid. So these two reactions are also example of benzene ring, क्योंकि ये रिंग में चेंजिंग हो रही है, इस फिनोलिक ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो दिस इज द सेकंड रिएक्शन, नाइट्रेशन। This second reaction generally asked in your exam, what happened when phenol reacts with concentrate nitric acid in the presence of sulfuric acid. यह क्वेश्चन आएगा कि हाउ यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड, फिनॉल को आप पिक्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो दीज टू रिएक्शंस, when nitric acid concentrate then this reaction occur and when dilute then this reaction occur. ओके, देखिए हमेशा यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑर्थो और पैरा ही बन रहा, क्यों, क्योंकि OH ग्रुप जो है कैसा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो दैट इज सल्फोनेशन। ऑल ऑफ यू लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड रिएक्शन दैट इज रिलेटेड ऑफ दिस, दैट इज सल्फोनेशन। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज द सल्फोनेशन। डियर स्टूडेंट्स, before the sulfonation that one reaction also related to the nitrogen, so we discuss at first, then the third that is the nitration is nitric acid reaction. Next is the nitrosation, the next reaction that is nitrosation. नाइट्रोसेशन मतलब बच्चों, अगर नाइट्रिक एसिड से न रिएक्ट करके आप नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराओ, नाइट्रस मींस HNO2 से, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ध्यान समझिए। यू नो दैट दिस इज द फिनॉल। अगर आप फिनॉल का नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो उसको हम कहते हैं नाइट्रेशन, और अगर फिनॉल का हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, और आपको बताया गया था HNO2 बनता कैसे है, अगर याद आप लोगों को होगा, अभी 2-3 दिन पहले बताया गया था कि NaNO2 और HCl से, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HNO2। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम वही प्रोसेस। ये अगर आप देखिए तो यहां से डिसोसिएट एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, अब इसमें से आपका ये डिसोसिएट हुआ किस फॉर्म में, NO फॉर्म में। मेरी बात समझिएगा, यहां से क्या डिसोसिएट हुआ, NO फॉर्म में, यहां से NO आपका प्रोडक्ट फॉर्म किया, मींस ये आपका फिनॉल है, इस फिनॉल में से यहां पर आपका क्या टूटा, NO आपका इस पोजीशन पे आ गया। ठीक, अब फर्दर रिएक्शन स्टूडेंट्स होता है इसका, अगेन ये आपका फर्स्ट स्टेप में NO जो ऐड हुआ, इसका फर्दर जो है रिएक्शन दोबारा स्टेप में होगा, और अब रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा, और आप जानते होंगे ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये आप नाइट्रिक एसिड जो ले रहे हैं इसकी डाइल्यूट क्वांटिटी होगी, अगर ऑक्सीडेशन होगी तो एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका हुआ बेंजीन रिंग ऑलरेडी है, यहाँ पर OH है, और जहाँ NO था ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या बन जाएगा, NO2। इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 पे है तो 4 नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल। अब अगर इस कंपाउंड का नेम लिखा जाए तो इसका नेम होगा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, क्योंकि ये पैरा पे है, या 4 आप लिख सकते हैं, या पैरा लिखिए, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, या आप लिख सकते हैं 4 नाइट्रोसोफिनॉल। तो अगर आप रिएक्शन किससे करा रहे हो भाई, HNO2 से, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, नाइट्रोसेन। अब अगर HNO3 से कराएंगे तो यही नाइट्रेशन कहलाता है, और HNO2 से कराएंगे तो दैट इज नाइट्रोसेशन रिएक्शन। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ, जिसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। द फोर्थ रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन। अब नेम से क्लियर है, सल्फोनेशन
द फोर्थ दैट इज सल्फोनेशन। अगर स्टूडेंट सल्फोनेशन वर्ड आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। कभी भी आपका वर्ड सल्फोनेशन आएगा तो इसका मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये स्टूडेंट्स क्या होगा, इसकी डिफरेंस होती है टेम्परेचर पर। ये आपका फिनॉल है, दिस इज द फिनॉल। इफ फिनॉल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, there are two conditions of sulfuric acid, that is H2SO4. Sulfonation means reaction with sulfuric acid, means H2SO4 both condition। अगर कहीं पर वर्ड सल्फोनेशन आए इसका मतलब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है तो द टेम्परेचर दैट इज 288 टू 298 केल्विन। अगर 298 से 298 केल्विन में करेगा तो प्रोडक्ट इज द डिफरेंस, and if the reaction same that is 373 Kelvin then the product will be different। स्टूडेंट्स होगा क्या, एक बार ऑर्थो कंडीशन फॉर्मेशन होगी और एक पैरा प्रोडक्ट होगा। तो ऑर्थो क्या होगा, जब टेम्परेचर लेस होगा तो पैरा फॉर्म करेगा। अगर आपको टेम्परेचर नहीं लर्न होगा तो आप यहाँ लिखिएगा लेस टेम्परेचर और यहाँ कर दीजिएगा हाई टेम्परेचर। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका OH है, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होता है डिसोसिएट कैसे होगा, ये टूटेगा OH में और SO3H में, OH और SO3H में। ये SO3 एक बार इस पोजीशन लग गया, ये आपका हो गया SO3H। सेकंड, जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सेम यही ग्रुप आपका मीन्स जो आपका फिनोलिक ग्रुप है, दिस ग्रुप, ये यहाँ सेम रहेगा, ये वाला ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर SO3H। देखिए ध्यान से। अब स्टूडेंट्स ये आप अब तक OH को प्रियोरिटी देते थे, लेकिन अगर आईयूपीएससी आपको याद होगा तो हमने बताया था कि SO3 जो होता है वो OH से मेन प्रियर ग्रुप होता है। तो इसका अगर नाम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहां से काउंटिंग होगी 1 नंबर और कितना होगा 2 नंबर, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। अब देखिए ये रिंग होता बेंजीन और SO3H लग गया तो इसका मतलब हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब सेकंड में आ जाइए, यहां से काउंट चुकी SO3 मेन ग्रुप है तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ओके, तो always remember that if phenol react with sulfuric acid, this is the sulfonation reaction। If the temperature is less, then form the 2 hydroxy means ortho condition, and if the temperature is more 370 then form the para condition। Maybe all of you understand। तो this reaction is also the benzene ring, क्योंकि इसमें आपका benzene ring में चेंजिंग हो रही है, OH में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो this is also the known as the sulfonation reaction। So all these reactions are related to the benzene ring. So these reactions are the known as the benzene ring reaction। Dear students, next reaction that is the Friedel-Crafts alkylation reaction। Listen carefully. The next part of it that is the Friedel-Crafts alkylation reaction। The next example for this that the Friedel-Crafts alkylation reaction। Dear students, if phenol, you know that this is the phenol, if phenol reacts with alkyl halide, alkyl means methyl, ethyl, propyl, किसी से रिएक्ट करेगा, suppose that CH3Cl से रिएक्ट करे, this reaction goes in the presence of आयन हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, इसका ध्यान दीजिए, इस रिंग में से आपका यहां से या जहां जहां पर आप जानते होंगे टर्न होता है वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन इस H से रिएक्ट करके HCl बना देगा। अब हमने बताया कि आपका OH जो है कौन सा होता है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो CH3 एक बार किस पर लग जाएगा, आर्थो पर, और एक किस पर लग जाएगा, पैरा पर लग गया। तो प्रोडक्ट क्या बना भाई, फर्स्ट कंडीशन ये आपका है दिस इज द OH, एक बार CH3 किस पर लग गया, दिस कंडीशन पे। और सेकंड प्रोडक्ट स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, ये आपका फिनॉल OH है,
एक कंडीशन क्या हो गया, दिस कंडीशन पे CH3 माने पैरा कंडीशन पे टेसियर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3। तो मीन्स मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है किसका भाई, आर्थो और पैरा का। अब स्टूडेंट्स अगर आप जानते होंगे तो इसको हम कहते हैं आर्थोक्रिसॉल। अगर जनरल आप नेम जानेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्थोक्रिसॉल। अब अगर नेम लिखना हो तो क्या होगा भाई, 2 methyl, 2 नंबर पे CH3 है, 2 मिथाइल फिनॉल, ये इसका आईपीसी हो गया। इसका अगर करेंगे तो ये हो जाएगा पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। अब अगर नेम लिखना हो तो 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, all these reactions are related to the benzene ring because there is no changing of phenolic group. So dear students, we have completed all these reactions which is related to the benzene ring and also related to the phenolic group, and also there are some special reactions. Dear students, now we discuss the next question, that is related to the how you differentiate the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल दिया जाए तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशिएट करने के लिए 3 रिएजेंट्स का यूज करते हैं, या 3 तरह से हम इसको कर सकते हैं। जो फर्स्ट होता है इसको हम कहते हैं बाई ल्यूकोस रिएजेंट। प्राइमरी सेकेंडरी यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हमें डिफरेंट करना हो, यानी अगर आप इसको हेडिंग डालना चाहते हैं लिख सकते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, डिस्टिंक्शन DI, ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी DISTINCTION, डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसको हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट से, सेकंड हम कर सकते हैं विक्टर मेयर प्रोसेस से, ठीक है। सब फर्स्ट क्या है, ल्यूकोस रिएजेंट, सेकंड क्या बताया गया, विक्टर मेयर प्रोसेस। तो अब ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयन हाइड्रस ZnCl2, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट HCl और आयन हाइड्रस ZnCl2 का अगर मिक्सचर लेते हैं, इन दोनों मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। दिस इज नोन एज द ल्यूकास रिएजेंट। तो जनरली in your exam ask that what is the Lucas reagent, then you write that Lucas reagent is the reagent is the mixture of concentrate HCl यानी concentrate hydrochloric acid and the iron hydrous ZnCl2 mixture। अब इससे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा कि अगर आपको अल्कोहल दिया और आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके हम लिए करते क्या है कि पहले हम अल्कोहल को लेकर के उसमें हम ल्यूकास रिएजेंट को डालेंगे। अगर डालने के बाद अगर टर्बिडिटी तुरंत अपीयर हो जाती है, टर्बिडिटी मतलब होता है धुंधलापन, अगर मिलाते ही सॉल्यूशन तुरंत धुंधला हो जाता है, इट मींस इफ टर्बिडिटी TURBIDITY, इफ द टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, अगर टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है, देन दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। लिसन वंस अगेन, इफ वी टेक द अल्कोहल, अगर सपोज दैट आपको 3 अल्कोहल्स दिए हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और आपको पता नहीं कि विच इज द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, देन यू टेक द 3 अल्कोहल्स इन द 3 टेस्ट ट्यूब, देन यू मिक्स द ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास मतलब द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड ZnCl2, देन यू मिक्स द ल्यूकास रिएजेंट इन 3 टेस्ट ट्यूब्स, जिसमें आप तीनों में लिए उसमें हिला दीजिए। अगर टर्बिडिटी TURBIDITY, टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है, मतलब तुरंत आ जाती है, अगर टर्बिडिटी तुरंत आ जाएगी तो दैट इज द टर्शियरी अल्कोहल, धुंधलापन। अगर सॉल्यूशन तुरंत धुंधला हो जाता है तो ये कैसा होगा, 3 डिग्री। और अगर टर्बिडिटी 5 मिनट्स के बाद आती है, यानी धुंधलापन जो है 5 मिनट के क्या आता है,
बाद आता है, तो दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। ये कैसा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर टर्बिडिटी जनरली हीटिंग के बाद आती है, मीन्स टर्बिडिटी आती नहीं है, तो अपीयर अपॉन हीटिंग, अगर हम इसको हीट करते हैं, अपॉन हीटिंग इट प्रोड्यूस, देन दिस इज 1 डिग्री। लिसन वंस अगेन। सबसे पहले आपने कहा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसमें सबसे पहले लिखा कि बाय ल्यूकास रिएजेंट। सबसे लिखोगे पहले कि द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड द anhydrous ZnCl2. Anhydrous ZnCl2 is known as the Leucos reagent. If we take the primary, secondary and tertiary alcohol and mix in primary, secondary and tertiary alcohol the Leucos reagent, if the turbidity 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 मतलब धुंधलापन appears suddenly, immediately, तुरंत आ जाए, मिलाते ही जैसे आपने डाला फटाक से धुंधला हो गया, तो दैट इज 3 डिग्री। जिसमें डालते ही धुंधला हो जाए इसका मतलब 3 डिग्री, और जिसमें डालने के 5 मिनट बाद धुंधला हो, यानी आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, डालने के बाद 5 मिनट बाद हो रहा है, मींस इफ टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 मिनट देन दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, एंड इफ टर्बिडिटी अपीयर ओनली अपॉन हीटिंग, आप सॉल्यूशन में ल्यूकास रिएजेंट डाल दो, डालने के बाद सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं हो, लेकिन हीट करने के बाद अगर टर्बिडिटी हो रही है तो दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो दिस इज द डिस्टिंग्विश्ड बाय द ल्यूकास रिएजेंट। मे बी ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। द सेकंड प्रोसेस दैट इज द विक्टर-मेयर प्रोसेस। हाउ यू आइडेंटिफाई द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बाय द विक्टर-मेयर प्रोसेस? ओके, this is the long process, means this is the tabular form process. So this process we discuss in the next video. Dear students, all of you see all these video and try to understand. In the next video I will try to solve the some questions related of the previous topic which we explained, means which I have completed. Okay, so dear students, all of you look all these video carefully, because all these videos are helpful to gain your proper knowledge. If you see all these video, then you will definitely, you are the master of the chemistry. You have the perfect knowledge. You want to write, how you write the reaction, how we make the reaction, and how we solve the question problems. So dear students, bye bye and take care. Okay, bye bye students.